Hello friends, this is Bhavin Patel, your English teacher, and I welcome you to my YouTube channel Abhinav English. Here you can watch and learn through various videos on English grammar, English speaking course, and junior college English lessons and poems as well as writing skills. Those who are watching for the first time, I humbly request them to subscribe my channel for regular updates. मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की चौथी कविता अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज पढ़ने वाले हैं। कविता पढ़ने के पहले हम इस कविता के रचयिता कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ was born on April 7, 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। He was a major English romantic poet who was an honored poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23 April 1850। वे अद्भुत रम्य काव्य शैली के पुरस्कर्ता थे। उस शैली में कविता सादर करने वाले कवियों में प्रमुख कवि थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के रानी विक्टोरिया के दरबारी कवि होने का दर्जा प्राप्त था। वे लगभग 1843 से उनके अंतिम समय तक यानी 23 अप्रैल 1850 तक राजकवि रहे। He is a leading English poet, English nature poet. His collection of poetry, Lyrical Ballads, is considered to be the central work of Romantic literary theory. The poem upon Westminster Bridge is one of the best examples of his romantic poems. Lyrical Ballads यह अद्भुत रम्य यानी रोमांटिसिज्म शैली में लिखित महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। उसी शैली में लिखी अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज यह एक उत्तम रचना है जो निसर्ग कविता का उत्तम उदाहरण है। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज is a Petrarchan sonnet in which William Wordsworth describes the beauty of the city as seen at dawn from the Westminster Bridge, London। इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन शहर के वेस्टमिंस्टर पुल से दिखाई देने वाले शहर के अद्भुत सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। इस कविता को उन्होंने पेट्रार्कन शैली में लिखा है। उस समय के इंग्लैंड में अभी औद्योगिक क्रांति का रौद्र रूप देखना बाकी था। द पोएट वॉज एंथ्रॉल्ड बाय द पैनोरामिक लैंडस्केप, ब्यूटी, calm and quiet nature before him। This poem was first published in the collection of poems in 2 volumes in 1807। कवि उनके समक्ष दिखाई देने वाले नयन रम्य और अद्भुत सुंदर दृश्य को देखकर अवाक हो गए हो ऐसा प्रतीत होता है। यह कविता 1807 में प्रकाशित हुई द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इस द्विखंडीय काव्य संग्रह में से प्रस्तुत की गई है। Wordsworth's poems are generally a celebration of nature and its inexplicable beauty. It is unusual to see that he praises man-made structures in this poem। वर्ड्सवर्थ की कविताएं अक्सर निसर्ग और उसके अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करने वाली होती है। उनकी कविता में उन्होंने मनुष्य निर्मित चीजों के बारे में प्रशंसा करते देखना थोड़ा अजीब नहीं लगता? In this particular poem, we find Wordsworth admires the city as it looks beautiful to his eyes at the time of early morning when most of the people are asleep। इस प्रस्तुत कविता में हमें वर्ड्सवर्थ शहर की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। वेस्टमिंस्टर पुल के ऊपर से प्रातः समय दिखाई देने वाले नयनरम्य दृश्य का वे वर्णन करते हैं जिस समय सभी नगरजन नींद ले रहे हैं। Human activities are not seen। Indirectly, we get a message that mingled with natural elements, even artificial structures look equally beautiful and praiseworthy
विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। मनुष्यों की कोई भी आवाजाही हरकतें नजर नहीं आती है। इस कविता से हमें अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा संदेश भी मिलता है कि मनुष्य अगर दूर रहे तो कुदरत के साथ आने से मानव निर्मित चीजें आस्थापन अद्भुत सुंदर दिखाई देते हैं। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, dull would he be of soul who could pass by, a sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear, the beauty of the morning silent where, ships, towers, domes, theatres and temples lie upon unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. The first 4 lines of the octave of the sonnet praise the city of London as if it is a heavenly place. There is no place on the face of this earth to compare with. The poet says that one cannot pass by the city without praising its charm and beauty. 14 पंक्तियों के सुनित ढंग में रचित इस कविता के प्रथम अष्टक यानी 8 पंक्तियों में लंदन शहर का वर्णन स्वर्गीय स्थली के जैसे कवि करते हैं। पुल के ऊपर से दिखाई देने वाला इतना सुंदर दृश्य पृथ्वी तल पर दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा वे शुरुआती पंक्तियों में ही व्यक्त करते हैं। कवि यह भी कहते हैं कि इतने अद्भुत सुंदर दृश्यों को बिना देखे कोई भी नहीं रह सकता और अन्यथा वह एक नीरस व्यक्ति ही हो सकता है। He even declares that the one who couldn't praise the city would be a dull, boring person lacking the aesthetic sense. The poet mentions clearly about the majestic appearance of the city that touches our heart. कवि कहते हैं कि उस सौंदर्य को देखे बगैर कोई आगे जा ही नहीं सकता। जो मनुष्य उसे अनदेखा करे उसके पास सौंदर्य दृष्टि का अभाव ही होगा। इस प्रकार कवि ने पुल के ऊपर से लंदन शहर के दृश्य का वर्णन किया है, वह हमारे हृदय को छू जाता है। We witness Wordsworth's descriptive quality in the further lines where he creates an image of the city as if it is wearing a beautiful morning's garment. This grandeur of the sight appeals to the hearts of a reader. अगली पंक्तियों में जब कवि शहर ने सुंदर सुबह के वस्त्र को परिधान किया है ऐसा चित्र बनाते हैं, उस वर्णन से उनके काव्य शैली की पहचान होती है। वाचकों के मन को छू लेने की क्षमता उनके लेखन रचना में है, यह हमें प्रतीत होता है। As it is the early morning time, there is no human activity, so it is silent and peaceful around there. In such atmosphere, all the man-made structures like ships, towers, domes, theatres and temples have become one with nature, and they are lying silently and glittering in the smokeless morning air. Here, the octave is completed. प्रातः समय का प्रहर और मनुष्य व्यवहार का न होना, इनसे पूरा वातावरण शांत और अद्भुत प्रतीत होता है। उस वातावरण में मनुष्य निर्मित ढांचे भी जैसे कि जहाज, मीनार, घुमट, नाट्यगृह और मंदिर सभी निसर्ग के साथ एकाकार हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वे सभी ढांचे शांति से जमीन पर लेटे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर पहली 8 पंक्तियां अष्टक पूर्ण होता है। Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glideth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. In the second part, the sestet of the sonnet, Wordsworth tells us about calmness and glorious sunshine. He expresses that
he had never ever seen such sunshine so grandiose, covering any valley or rock or hill with its glitter and warmth. 6 पंक्तियां यानी कि षटक इस कविता का दूसरा चरण है। इसमें कवि उन्हें हुए शांति के अनुभव और सुंदर सूर्य प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सूरज का प्रकाश इसके पूर्व कभी भी इतना वैभवशाली और प्यार भरी गर्माहट से खाई, पत्थर और पहाड़ियों को अपनी आगोश में समाते हुए नहीं देखा गया। The poet also mentions that he had never experienced such a serenity before or anywhere. As human activity is yet to begin, ships are docked, the river is free to flow. It takes its course of flow as if it is gliding on its own will. कवि यह भी कहते हैं कि इसके पूर्व और अन्य किसी भी जगह पर उन्होंने इस प्रकार की अद्भुत शांति का अनुभव नहीं किया है। मनुष्य के व्यवहार, दिनचर्या के काम अभी इस इलाके में शुरू नहीं हुए हैं और इस कारण कुदरत स्वच्छंद होकर व्यवहार कर रही है, ऐसे लग रहा है। प्रातः समय सभी जहाज बंदरगाहों में खड़े हैं और थेम्स नदी की धारा उनके प्रवाह स्वयं प्रेरणा के साथ किसी भी रुकावट के बिना आनंद के साथ बह रहे हैं। In the last couple of lines, we see the poet's gratefulness towards God for blessing the city with such a peaceful beauty. It seems to him the houses too are sleepy as people living in them are not awoke. अंतिम 2 पंक्तियों में कवि ईश्वर से आशीर्वाद रूपी शांति की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के आभार प्रकट करते हैं। नगरजन घरों में अभी भी सोए हुए हैं, वे नींद से नहीं जागे हैं। यह बताने के लिए वे कहते हैं कि सारे घर नींद में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। These concluding lines of the poem create the image of the city of London as the most powerful city with all modern activities and establishment. This morning time calmness has enveloped the city. The poet knows very well that once the hustle bustle of the daytime would start, the peace would disappear, and hence he thanks God for offering such a blissful and peaceful morning time when the drowsy city looks heavenly with natural elements like sun, pure air and free flowing river. इन अंतिम पंक्तियों में कवि लंदन शहर की ऐसी दमदार छवि, दृढ़ता भरी छवि, शक्तिशाली छवि पेश करते हैं कि वो देखते ही बनता है। सभी प्रकार के आधुनिकताओं के लक्षण से भरा यह शहर सभी आधुनिक गतिविधियां और आधुनिक आस्थापनों से, इमारतों से भरा सामर्थ्यशाली शहर है, ऐसा वर्णन किया है। सुबह के शांतिपूर्ण माहौल ने इस शहर को अपनी बाहों में ले लिया है। कवि को यह अवश्य पता है कि दिनचर्या के सभी व्यवहार शुरू होते ही यह माहौल, यह शांति नहीं रहेगी और इसीलिए वे ईश्वर से आभार व्यक्त करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि यह अद्भुत सवेरा ईश्वर की ही देन है और वह सदा बना रहे। पूरा शहर सो रहा है। इस शहर की इमारतें, आस्थापनाएं, शहर, सूर्य, शुद्ध हवा और नदी जैसे निसर्ग के तत्वों के साथ मिलकर अद्भुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। Students, here all the 14 lines description of the city seen from over the Westminster Bridge is over. दोस्तों, यहाँ पर वेस्टमिंस्टर पुल से दिखाई देने वाले सुंदर शहर के वर्णन की 14 पंक्तियाँ पूर्ण होती है। I hope you have understood the poem to the last word. मुझे आशा है कि इस कविता के हर शब्द से आपका परिचय अच्छी तरह से हो गया है। In our next video, we shall see the appreciation of the poem. अपने आने वाले अगले वीडियो में हम इस कविता का रसग्रहण
देखने वाले हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।